dear students, how are you all? Welcome to RA Knowledge Spot. Students, we are going to do chapter number 7 of class 9, that is linear equation and inequalities. Okay, in the previous video we have done question number 1 and right now we have to start question number 2. That is question number 2, the part 1. What we have to do in this question, that solve each equation and check for extraneous solution if any. What is this extraneous basically? The word extraneous, the word is extraneous. This means this word is deduced from the word extra. Like whenever there are some extra roots, then definitely the solution is not possible or it does not exist. What does it mean? Definitely in the question following you will know what does it mean basically. Okay, first of all, this is the part 1 of that question. It's 3x plus 4 is equal to 2. You better know that how can we finish the square root? We can finish the square root by taking square both sides. Okay, we are going to take square both sides. Now we know that why they cancel, because the value of square root is 1 by 2. After cancellation we are having 3x plus 4 is equal to 2 2s are 4. Then here it is positive, on the other side it will be negative. 4 minus 4 is 0, 3x. 3 is multiplying and here it will be divided. And this 0 by something, अगर आपके पास numerator में 0 and the denominator is any number like 3, 4, 5, A, B, C, whatever it is, in return answer will be 0. Now the special thing or the different thing here in this exercise part number 2 is that we have to check it, check our answer, the answer are okay, they fine or not. We are going to find that extraneous roots. Now first of all you have to mention this is the checking part. Then by substituting the value of x, whatever the answer here, you have to put in the original equation. Or what is the original equation? This is the original equation, like original question. Then firstly we have to write the question properly. Instead of x, like we have to replace the value of x, that is 0. Wherever we are going to have the value of x, we have to put 0. Then 3 zeros are 0 plus 4. अब एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ों को शिफ्ट कर रहे होते हैं. अगर जो चीज़ हम कहते हैं यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगी, लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा कुछ नहीं करना. चेकिंग का मतलब होता है आपने क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उसको लिख दिया, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, द आंसर वैल्यू. देन ये जो 2 है इसको मूव नहीं करना, ये ऐसे साथ साथ चलता रहेगा. और सिमिलरली आपने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. अब 3 zeros are 0 plus 4. 4 plus 0 आपके पास क्या आता है, 4 आता है. और जब आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं that will be 2. ये आपके पास क्या होगा, 2 आपके पास आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि यही जब आपका जो आंसर ये 0 आया था, जब आपने इसको वापस क्वेश्चन में उसकी सब्स्टिट्यूशन की है, तो अगर कभी ऐसा हो कि ये जो लेफ्ट और राइट दोनों की अगर वैल्यू सेम आ जाती है, इट मीन्स that this is not an extra root. ये इसका extra solution या extra root नहीं है, बल्कि इसका proper इसका यही आंसर बनता है. समटाइम ऐसा होता है कि अगर कोई चीज पुट करनी हो, जो आंसर हमारा आता है, जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर यहाँ पर लेट सपोज करें कि यहाँ पर 2 ना होता, 5, 6 व्हाटएवर इट कुड बी एनीथिंग, अगर कभी ऐसा होता और ये दोनों बराबर नहीं आते, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो 0 है ये एक इसका एक्स्ट्रा रूट है, इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया. यानी कि जब रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसको जो पुटिंग करने से उसकी ये राइट साइड वाला नंबर नहीं आपके पास आता, तो इसको कहते हैं एक्सट्रानियस रूट्स. ठीक है, ये एक्सट्रानियस. अब इसका सोल्यूशन है, यहाँ पर एक्सट्रानियस सोल्यूशन हमने उसने कहा है ना, चेक फॉर एक्सट्रानियस सोल्यूशन, चेक करना होता है, बट दिस इज ओके. नेक्स्ट देखते हैं इसका जो पार्ट 2 है, सेकंड जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज 2x minus 4. दिस इज क्यूब रूट -2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ये -2 है, अदर साइड इट विल बी positive 2. ओके, आप अगर आपको ये नहीं पता कि ये 0 है तो हम उसको मेंशन नहीं करते, हमें पता है कि ये नेगेटिव है. 0 के साथ कोई भी चीज ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, वो नंबर ही आता है. 0 वहां से इग्नोर्ड वैल्यू होती है. ओके, अब हमने इसका क्यूब लेना है बोथ साइड, ताकि इसका क्यूब रूट खत्म हो जाए, टेकिंग क्यूब बोथ साइड. अब यहाँ इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी. नाउ 3x minus 4 is equal to 8. ओके, now this is 4, यहाँ negative है, on the other side it will be positive. Okay, then 8 plus 4 is 12. Now 2 is multiplying, here it will be divided, it's 6. Okay, अब इसका solution set 6 है. अब हम चेक करते हैं इसको कि इसका जो आपके पास चेकिंग है वो कैसे होगी.
तो देखें सबसे पहले लिखेंगे चेकिंग, देन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन ओरिजिनल इक्वेशन, नाउ व्हाट वाज द वैल्यू, दैट इज 6। ओके, अब ये इक्वेशन को अब इसको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना, इसकी साइड नहीं चेंज करनी, इसको अब आप ऐसे ही रहने देंगे, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। हमने x की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। नाउ 2 6 are 12 minus 4 minus 2 is equal to 0, then 12 minus 4 that is 8। अब 8 का क्योंकि 8 के ऊपर क्यूब रूट है, और याद रखिए ये 2 के ऊपर क्यूब रूट नहीं है, सिर्फ 8 के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, 8 का जब क्यूब रूट आता है तो कैसे 2 की पावर 3 है, फिर उसकी जो, क्योंकि 2 की पावर 3 क्यों है, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 8, देन 1/3 कैंसिल आउट। अब ये देख लें 2 माइनस 2 का आंसर क्या आता है, दैट इज 0। इसका मतलब कि दोनों जो साइड्स है वो इक्वल आ गई हैं। इट मींस कि जो सेट इसका सोल्यूशन क्या है, 6 है, एंड दिस इज नॉट लाइक एक्स्ट्रा रूट, ये इसका एक्स्ट्रानियस रूट नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, here is the question, don't be worry about the t, the variable could be anything, x y z a b c d something whatever। solution दिस इज नाउ 2 इज, वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने इसको यूं किया कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। आप सिंपल इसका स्क्वायर ले सकते हैं विद दिस 2। ओके, देयर कुड बी 2 सॉल्यूशंस ऑफ दैट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। सिंप्लीफिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय 2 ways, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दिस इज द स्क्वायर बोथ साइड। ओके, आपको पता है हम स्क्वायर बोथ साइड पे क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इक्वलिटी साइन है, और इक्वलिटी साइन आपको ये शो करती है कि दोनों चीजें बराबर हैं। अगर हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो हमें इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। नाउ कैंसिलेशन, 2 विद स्क्वायर रूट, रिमेनिंग टर्म्स 5 का स्क्वायर, लाइक 5 5s are 25 and 2 2s are 4, then 4 is plus positive and there it will be negative, or because why I write it 1, 7.1 में का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने I have discussed with you, like we can make any number fraction by how, like by putting a 1 in the denominator। तो उसके डिनोमिनेटर में मैंने इसको 1 लिखा है। इसको क्यों फ्रैक्शन बनाया है, क्योंकि इसके साथ का जो नंबर है दैट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। अब हमें पता है कि हम ये आपने क्लास 5 में आपने या 4 से नहीं 4 में आपने सीखा है इसको, कि किस तरह से जब आपके पास दो फ्रैक्शन होती है इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका ये तरीका है, लाइक अगर ये 4 है तो आप कोशिश करेंगे इस 1 को भी 4 बनाएं। एंड हाउ कैन यू मेक इट 1 लाइक 4, इट्स सो सिंपल। आप इस 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मैथ्स में हम आप देखेंगे अगर मैंने इसको यहाँ लिया है यहाँ भी लिया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर रही हूँ तो मुझे न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब इसको फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन है। 25/4 is as it is, minus 4 4 are 16 divided by 4, next step। ओके, दिस इज इसका ये प्रोसेस है, इसको आप फ्रैक्शन इसको थोड़ा इसको लेंथी इसको इस तरह से फॉर्म बनाएंगे, इसको 4 आएगा, 25 एज इट इज। जब आपके पास एक्चुअली मेन हमारा पर्पस होता है, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। Once the denominator is same, then a single process and single operation लिखा हो, 25 minus 16 इसको माइनस कर दें आप, that is 9/4। ये इसका आंसर अभी नहीं पता क्या, ये इसका आ चुका है। अब हम जरा इसकी चेकिंग करते हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट है, अब इसका देखें, हम इसकी चेकिंग करते हैं। चेकिंग में क्या करते हैं, वही बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, मैंने इसको इन शॉर्ट लिखा है, आप लिख सकते हैं इतना भी काफी। अगर आप चेकिंग लिखें फिर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन ओरिजिनल इक्वेशन लिखें, दैट इज मोर बेटर। t plus 4 is equal to this one। अब हम इसमें लिखेंगे यहाँ पर ये this is 9/4 and this is 4/4 and further ओके। अब आप देख रहे होंगे कि ओरिजिनल इक्वेशन ये, लेकिन मैंने उसको ओरिजिनल इक्वेशन चेंज कर दी थी, तो इट डजंट मैटर, मैंने सवाल को पहले स्टेप में ही इस फॉर्म में रख दिया था, इसलिए मैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। अगर आप उसमें भी करेंगे फिर भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर यहाँ पर एंड पे आके इसका आंसर सेटिस्फाई होता है तो बेशक आप इसमें करें या इसमें करें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज किया था, तो मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन की है। डियर स्टूडेंट्स, डोंट बी वरी कि इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने इसकी फॉर्म चेंज कर दी थी, क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज किया था। तो आप बेशक अगर आपको कंफ्यूज कर रही है बात, आप ओरिजिनल क्वेश्चन में ही सब्स्टिट्यूट करके देख लें। ओके, यहाँ पर क्या किया है, जब आपने अगेन जब वैल्यू पुट किया है, यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू 9/4 है। अब अगर ये 9/4 है तो इसको भी क्या होना चाहिए, इसको भी फ्रैक्शन होना चाहिए सेम। 4 के नीचे मैंने 1 को सपोज किया है, उसके बाद 4 अगर मैं, क्योंकि मुझे यहाँ 4 चाहिए, मैं यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ भी करूँगी 4 से मल्टीप्लाई, इट विल बी सेम। और बिल्कुल जैसे आपने ये वाली प्रोसेस किया ना, सेम वही प्रोसेस होने जा रहा है। अब 9 + 16 बिकॉज 4 4 16 होता है। अब 16 + 9 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 4।
और ये 5/2 एज इट इज चलता रहे, ऐसे कुछ भी आप नहीं करेंगे। अब जब आप इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, इन 4 2। अब देखिए दोनों आंसर मैच करें, इसका मतलब दिस इज द पॉसिबल सोल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 8 और इसका क्वेश्चन जरा देखें। यहाँ पर x+1 डिवाइडेड बाय 2x+5 इज इक्वल टू 2। अब इसमें मतलब ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी ज्यादा है, डिफिकल्ट कम है। ऑपरेशन इसके वही आपके पास पहले वाली हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पास है और इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। Firstly, we have to take the square both sides. Why? Because there is a square root. ठीक है, square root है तो square लेना पड़ेगा। अब इसका square root, ये हमने जब square लिया तो इसकी cancellation हो गया, 2 2s are 4 आ गया। Next देखिए, ओके अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर ये 2x+5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और यहाँ 4 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें, x+1 एज इट इज, 4 2s are 8, 4 5s are 20। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे, 8x यहाँ पॉजिटिव है, ऑन द अदर साइड लेफ्ट साइड में आप देखिए ये माइनस हो जाएगा। दिस इज 20, ये पॉजिटिव 1 है एंड देयर इज नेगेटिव 1। ओके नेक्स्ट देखें, दिस इज प्लस माइनस माइनस एंड 8 - 1 दैट इज 7x, और ये बड़े नंबर का साइन आपके पास यहाँ पर आ गया। देन 20 - 1 दैट इज 19। अब 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ जाके आपके पास क्या होगा, डिवाइड होगा। और याद रखिए ये माइनस साइन जो है वो साथ साथ इसके मूव करेगा क्योंकि ये 7 के साथ है। and this is the solution set. The main portion of the question is the checking part. क्योंकि इसकी checking जो है it's quite lengthy. Okay, this is the question, the original equation. We have to substitute the value in original equation. Now what is the value? That is 19/7 - 7. अब आपने बहुत ख्याल रखना है और बहुत स्लोली ग्रेजुअली और 1 by 1 इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले आप x की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, दैट इज -19/7 + 1। डिनोमिनेटर में देखें 2 इज एज इट इज, द वैल्यू ऑफ x रिप्लेसिंग +5। नेक्स्ट स्टेप, ओके यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि दिस इज अ फ्रैक्शन। 19/7 is a fraction but 1 is not a fraction. In previous video, when we are doing to do chapter number 7 part, इसका जो 1 हमने किया है और उस पे हमने क्या किया था कि मैंने आपको बताया था हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन बना सकते हैं, कैसे, बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर और मेकिंग द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 1 by 1। और सिमिलरली यहाँ पर 5 है, क्यों बनाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये साथ इसकी फ्रैक्शन लिखी है। जब एक फ्रैक्शन है साथ वाली को भी हमने क्या बनाना है, फ्रैक्शन। क्योंकि ये चीज आप लोगों ने क्लास 4 में पढ़ी है, ग्रेड 4 में, कि जब आपके पास दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है और वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है। रिमेंबर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं होती। जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है तो साथ वाले नंबर को हम फ्रैक्शन बनाएंगे और उसका डिनोमिनेटर वो बनाएंगे जो इसका डिनोमिनेटर है 7। अब इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर लिखा है 19/7 प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया और सिमिलरली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाई वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, बिकॉज जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर पार्ट, और देखिए कितनी ज्यादा फ्रैक्शंस आ रही हैं, बट डोंट बी वरी, मैं आपसे फिर कह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप करें और फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके देन दिस इज 19 2s are 38 एंड माइनस उसका वैसे ही आ गया। 7 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी क्योंकि 2 की मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 19 से हो रही है, 7 से नहीं होती, और ये चीज हम पहले भी काफी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके देन अब इसके नीचे 7 है, यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ जो 5 था उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करें। इससे मत घबराइएगा कि देखें यहाँ 1 है और यहाँ नीचे 5 है, इसीलिए उसको 7 से और इसको 5 से करेंगे। अब जब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप आप देखें, अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, 19/7 प्लस 7 1s are 7 and 7 1s are 7, यहाँ पर आपके पास 7/7 आ गया। अब फर्दर देखें, ये 38/7 है एंड दिस इज 38 - 38/7। ओके एंड दिस इज 5 7s are 30 and 7 1s are 30, 7 1s are 7। ओके अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे कि इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, और ये ऑपरेशन भी आपने क्लास जो ग्रेड 4 है उसमें आपने फर्स्ट टाइम किया है। ये 7 है और उसके बाद अभी तक आप करते ही आ रहे हैं। ओके ये -19 ऐसे ही है, प्लस 7, इसकी जो एक और फ्रैक्शन है, यहाँ पर डबल फ्रैक्शंस हैं, नीचे देखें तो 7 है, फिर -38 प्लस 35,
इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे? ये स्टूडेंट ये बहुत लेंथी चीज होती है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया। और यहाँ पर आपको 4 फ्रैक्शन नजर आ रही है के नंबर देखें 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं। तो एक्चुअली ये जो फ्रैक्शन होती है ये डिवीजन साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिखे, पहले इनको सॉल्व कर लिया। माइनस प्लस माइनस 19 माइनस 7 दैट इज 12, दिस इज 12 बाय 7। और ये जो थर्ड आपके पास जो सेकंड फ्रैक्शन आ रही है इसको हमने इसको इस डिवीजन साइन में चेंज कर दिया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसको माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस, दिस इज 3 बाय 7 माइनस 3 बाय 7 द बिगेस्ट नंबर साइन। अब ये चीज भी फर्स्ट टाइम आपने ग्रेड 4 में सीखी थी कि जब आपके पास दो फ्रैक्शंस होती हैं और उनके दरमियान डिनोमिनेटर के दरमियान एक डिवीजन का साइन आता है, तो डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, और उसका कन्वर्जन के लिए जो उसका राइट साइड का नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। इट मींस कि यहाँ पर आपने जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा 7। साथ ही पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, और उसके उसी स्टेप में आपने क्या करना है? इसको 7 बाय माइनस 3 लिख देना है। अब इसकी कैंसिलेशन का स्टेप देखें। This is 3 ones are 3 and 3 fours are 12. Again 7 ones are 7 and 7 ones are 7. अब जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के स्टेप हम करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्ट्रेट ऐसे करेंगे। 4, दिस इज 4 ones are 4, और नीचे 1 ones are 1। आपको पता है अगर हम डिनोमिनेटर में 1 को लिख सकते हैं तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, इज इक्वल टू 2, ये साथ सब जगह देखें 2 जो है वो साथ साथ उसके चलता आ रहा है, हर स्टेप में 2 साथ आ रहा है। ओके, हमें पता है कि जब इसका स्क्वायर लेंगे अंडर रूट जो 4 होते हैं वो बराबर होते हैं 2 के, दैट इज अब इसका आंसर जो है वो बिल्कुल इक्वल आ चुका है। इट मींस इसका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पर 19 बाय 7 इसका सोल्यूशन सेट है। ओके, अब इसमें आपने क्या करना है? सबसे जो मेन चीज है, चेकिंग हो चुकी है, इसको बहुत स्लोली ग्रेजुअली और आराम से करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज की श्योरिटी देती हूँ कि इसको 2 टाइम्स अगर आप करते हैं, इसको 2 दफा भी कर लें, कम से कम एक दफा देख के करें, फिर दूसरी दफा और इसको जुबानी करें, तो डेफिनेटली आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा, आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। एनीहाउ, सारे क्वेश्चन ना करने की रीजन आपको बता दी थी कि सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, इसके करने को कर सकते थे, लेकिन आपको हमने ऐसा नहीं, इस काबिल we want to make you enable that you should do by yourself rather than you have to, we are not going to make a key book for you so that you just copying each and everything. There are also example in front of you in your book, but at least you have to try by yourself so that you should be able कि आप उसके खुद कर सकें। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाए कि प्रैक्टिस करो, बाकी rest of the question you have to solve by yourself. If not, do let me know, then definitely we'll solve all these questions. Okay dear students, take care, bye bye.